ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 3 ਲੈਕਚਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ 3 ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਊਟ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਨ ਐਨੀ ਐਟਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ Z ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਲੱਸ ਨਿਊਟਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ ਜਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ A ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Z ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਲੱਸ ਨਿਊਟਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ A ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਐਟਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਐਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ X ਨਾਮ ਦੀ ਐਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ A ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ Z ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਔਰ Z ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਹੈ, ਐਟਮ ਦੇ ਟੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਟਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ X ਐਟਮ ਹੈ। ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਔਰ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਲੱਸ ਨਿਊਟਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਐਟੋਮਿਕ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
नीचे आपां Z लिखिया, Z यानी कि आपां बोल सकते हाँ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की हुंदा है तो आपां देखिया स्टूडेंट एटॉमिक नंबर किसी भी परमाणु विच प्रोटाना की संख्या यानी कि आपां नीचे P लिख सकते हाँ। इस तो बाद स्टूडेंट थर्ड देखो जी, कोई एक्स एटम है, फॉर एग्जाम्पल इस दे विच जो ऊपर में 12 लिखा है और नीचे में 6 लिखा है। इसका मतलब की है नीचे जो मैं 6 लिखा है एक ही है जी प्रोटान है, और ऊपर जो मैं 12 लिखा है एक ही हैं जी P+N यानी कि प्रोटान प्लस न्यूट्रॉन हैं। आई होप दैट इज़ क्लीयर। हुण देखो स्टूडेंट एग्जाम दे विच जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन की पूछा जाएगा किसी भी एटम दे विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किद्दां निकाले जा सकते हैं। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन की बनेगा किसी भी एटम दे विच जो न्यूट्रॉन हुंदे हन उन्हां दी संख्या किवें पता लगाई जा सकती है। तो स्टूडेंट मैं लिखा है A-Z यानी कि A-Z का मतलब की हुंदा है, तो ए नूं आपां देखिया जी ए नूं बोलिया जाता है एटॉमिक वेट और Z नूं बोलिया जाता है एटॉमिक नंबर। यानी कि एटॉमिक वेट दे विचों आपां की माइनस करना है, आपां एटॉमिक नंबर नूं माइनस करना है। तो अपने को किस दी वैल्यू आएगी, अपना आंसर होएगा जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किस तरह देखो स्टूडेंट इस जगह पे 12 है, 12 दे विचों अगर आप 6 निकालांगे यानी कि नीचे जस्ट की है P है, ऊपर की है P+N यानी कि P विचों P माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो की होएगा जी N होएगा यानी कि न्यूट्रॉन होएगा। हाँ जी स्टूडेंट हुण देखो एटॉमिक नंबर आप देख चुके हैं, एटॉमिक वेट भी आप देख चुके हैं और न्यूट्रॉन किद्दां निकालने हैं वो भी आप देख चुके हैं। आई होप ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी होएगी। हुण आपां गल करते हाँ सैकेंड स्लाइड के उपर। देखो स्टूडेंट इस दे अंदर आपां देखण जा रहे हैं आइसोटोप्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आइसोटोप नूं पंजाबी दे विच बोलिया जाता है समस्थानिक। हाँ जी हुण ये समस्थानिक ही हुंदे हैं, नाम तो ही पता चल रहा है समस्थानिक यानी कि एक स्थान रखने वाले। हाँ जी हुण इस दे विच तुसीं 2 पॉइंट याद रखने हैं, हैविंग सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल यानी कि पीरियोडिक टेबल दे विच इक्को समान रखने वाले, इक्को स्थान रखने वाले। उस तो बाद हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि जिन्हां दे कोल समान प्रोटॉन हो। देखो स्टूडेंट एक एक चीज़ तुहानूं समझ आएगी, जस्ट तुसीं वीडियो नूं पूरा देखना है। अगर क्वेश्चन आए आइसोटोप या समस्थानिक की हुंदे हन तो अपना आंसर की होना चाहिए है जो पीरियोडिक टेबल दे विच की करन जी इक्को स्थान रखन, यानी कि जिन्ने भी आइसोटोप हुंदे हन सारियां दा ही सेम स्थान होना चाहिए है। और दूसरी चीज़ सारियां दे विच प्रोटॉन किन्ने हुंदे हन जी, प्रोटॉन भी सेम हुंदे हन। हुण आपां देखदे हां जी एग्जाम्पल अपने सामने। देखो जी आइसोटोप सब तो पहली चीज़ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्लेस कितना है जी 1 नंबर है जी, पीरियोडिक टेबल दे विच हाइड्रोजन का 1 नंबर है। हुण तुहाडे सामने इस बॉक्स दे विच हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मैं लिखे हैं। देखो जी आइसोटोप का मतलब की हुंदा है जिन्हां दे विच सेम प्रोटॉन होण। तो आपां देखिया पिछली स्लाइड दे विच प्रोटॉन नूं आपां कित्थे लिखदे हां, प्रोटॉन नूं आपां नीचे लिखदे हां, यानी कि ये जो नीचे वाला 1 है एक ही है जी प्रोटॉन है। तो तिन्नां दे विच देखो स्टूडेंट 1 1 सेम है। इसका मतलब की है जी एक ही है जी आइसोटोप है किसका, ये है जी हाइड्रोजन का आइसोटोप। हाँ जी ऊपर चाहे वैल्यू कुछ भी होए आइसोटोप का मतलब हुंदा है सेम प्रोटॉन होने चाहिए हैं। हाँ जी तो तिन्नां दे विच की हाँ जी सेम प्रोटॉन हैं बट इन्हां दे नाम अलग अलग हैं। हाँ जी कई बार एग्जाम दे विच पूछा जाएगा H11 का नाम की है, तो अपना आंसर होएगा जी प्रोटनियम, प्रोटियम। H12 का नाम ड्यूटेरियम और H13 का नाम है जी ट्रीटियम। हुण देखो स्टूडेंट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। हाँ जी सब तो पहली चीज़ हाइड्रोजन के किन्ने आइसोटोप होंदे हैं, तो अपना आंसर होएगा जी 3। किहड़े किहड़े जी, तो आपां देखिया जी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और थर्ड है जी ट्रीटियम। हाँ जी हुण अगर आप गल करते हैं ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम तो की बनता है जी, ड्यूटेरियम तो बनता है D2O और D2 नूं बोलते हैं आप ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसनों आप भारी जल बोलते हैं। और इस भारी जल का काम की हुंदा है, तो जो न्यूक्लीयर रिएक्टर होंदे हैं, हाँ जी न्यूक्लीयर रिएक्टर दे विच मॉडरेटर के तौर पर, मॉडरेटर या फिर मंदक के तौर पर। देखो स्टूडेंट जो डिटीरियम ऑक्साइड है जिसनों आप भारी जल बोलते हाँ, न्यूक्लीयर रिएक्टर दे विच मॉडरेटर के तौर पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जो न्यूक्लीयर रिएक्टर है इस दे विच जो न्यूट्रॉनां दी
ਨਿਊਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? D2O ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਔਰ ਕਿਸ ਦਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ। ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਦੋ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? C12 ਔਰ C14। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਚੇ 6 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਹਨ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ? 6 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ C614 ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫੋਸਿਲ ਏਜ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ 2400 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ? ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਵ ਸੀ, ਫੋਸਿਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਔਰ ਥਰਡ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਜੋ ਆਰਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕ 74। ਆਰਸੈਨਿਕ 74 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਰਸੈਨਿਕ 74 ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੋਡੀਅਮ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੋਡੀਅਮ 24। ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ 24 ਆਈਸੋਟੋਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ 4 ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਥੱਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਲੱਡ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਬਰੀਨੋਜਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਜੋ ਪਲੇਟਲੈਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਸੋਡੀਅਮ 24 ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਇਹ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਆਇਓਡੀਨ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਇਓਡੀਨ 131। ਇਸ ਆਇਓਡੀਨ 131 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਇਓਡੀਨ 131 ਆਈਸੋਟੋਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਯਾਨੀ ਕਿ U235 ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ 235। ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 235 ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੋਬਾਲਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਲਾਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਹਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਬਾਲਟ, ਤਾਂ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕੋਬਾਲਟ 60। ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਕਿਸ ਆਈਸੋਟੋਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਬਾਲਟ 60 ਦਾ। ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੈਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਰੇਡਾਨ ਗੈਸ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਫੋਸਫੋਰਸ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਫੋਸਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਫੋਸਫੋਰਸ 23। ਹਾਂਜੀ,
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਸੈਨਿਕ 74 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਸੋਡੀਅਮ 24 ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਆਇਓਡੀਨ 131 ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ 235 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੋਬਾਲਟ 60 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫੋਸਫੋਰਸ 23 ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਆਈਸੋ ਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਈਸੋਟੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਈਸੋ ਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਆਈਸੋ ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ weight ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਐਟੋਮਿਕ weight। ਐਟੋਮਿਕ weight ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ weight ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਈਸੋ ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਭਾਰ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਨ ਭਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰ ਐਟੋਮਿਕ weight। ਭਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ weight ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹਨ। 1 ਬਾਏ 1 ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਜੀ AR ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਗਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ K यानी कि पोटाशियम और CA यानी कि कैल्शियम। देखो स्टूडेंट, इन्हों दे आपा देखा कोई भी एटम है उस दे उपर आप लिखते हैं जी एटोमिक वेट और नीचे आप लिखते हैं जी एटोमिक नंबर। तो देखो जी आइसो बार की होंगे हैं जिन्हों के एटोमिक वेट सेम होवे। तो देखो जी आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम के उपर 40 लिखा हुआ है, यानी कि तिनों का ही एटोमिक वेट की है जी सेम है, बट एटोमिक नंबर चेंज है 18, 19 और 20। अपन एटोमिक नंबर नाल मतलब नहीं है, अपन मतलब है जी एटोमिक वेट, यानी कि आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम का एटोमिक वेट कितना है जी 40। तो ये तीनों की हाँ जी, तीनों एक दूसरे के आइसो बार हैं, यानी कि समान भार वाले। हाँ जी, आई होप ये चीज़ तुहानू क्लीयर हो चुकी होएगी। हुण इस तो बाद आप देखते हैं जी आइसोटोन। हाँ जी, आइसोटोन का मतलब की होंदा है, आइसोटोन का मतलब होंदा है जिस विच न्यूट्रॉनां की संख्या समान होवे, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ जी, न्यूट्रॉनां की संख्या समान होवे का मतलब ऐदां दे एटम जिन्हां दे विच की है जी न्यूट्रॉनां की संख्या समान है। सब तो पहली चीज़, अगर तुसी पिछली स्लाइड में देखा है तो पिछली स्लाइड के आप न्यूट्रॉनां नूं किद्दां निकालते हैं, तो आप देखा स्टूडेंट न्यूट्रॉनां नूं आपां निकाल सकते हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकालते हाँ ए दे विचों Z माइनस करना, और ए का मतलब की होंदा है जी एटोमिक वेट और Z का मतलब की होंदा है जी एटोमिक नंबर, यानी कि एटोमिक वेट दे विचों किस नूं माइनस करना, एटोमिक नंबर नूं माइनस करना। हाँ जी, हुण आपां देखते हाँ जी आइसोटोन किद्दां हुंदे हन। तो देखो जी तुहाडे सामने 2 एग्जाम्पल हैं। हाँ जी, सब तो पहला पहले बॉक्स दे विच की है जी। हाँ जी, सब तो पहला आपां गल करते हाँ जी पहले बॉक्स दे विच। पहले बॉक्स दे विच 2 बोल सकते हाँ जी एलीमेंट हैं, दूसरे दे विच भी 2 हैं। हाँ जी, हुण देखो स्टूडेंट, पहले दे विच की है P यानी कि फॉस्फोरस, Si यानी कि सिलिकॉन। हाँ जी, हुण देखो जी उपर की है, फॉस्फोरस के ऊपर 31 और सिलिकॉन के ऊपर 30 है। फॉस्फोरस के नीचे की है 15 है और सिलिकॉन के नीचे की है 14 है। जो आप उपर वाली वैल्यू के विचों नीचे वाली वैल्यू माइनस करते हैं तो अपना आंसर की आएगा जी, अपना आंसर आएगा जी 16, और इस दे विच भी की आएगा जी 16, क्योंकि 31 विचों 15 माइनस करांगे 16 और 30 दे विचों भी अगर आप 14 माइनस करेंगे तो 16, यानी कि दोनों दे विच न्यूट्रॉन किने किने हैं 16 16 हैं, और फास्फोरस और सिलिकॉन एक दूसरे के की हैं जी आइसोटोन हैं। सैकेंड स्लाइड दे विच देखो जी, सैकेंड स्लाइड की अगर आप गल करते हैं अपने कोल की है जी
Na यानी कि सोडियम और Mg यानी कि मैगनीशियम। हाँ जी, तो देखो जी सोडियम के अगर आप 23 सोडियम के 23 के विचों 11 माइनस करते हाँ तो अपना आंसर क्या आएगा जी 12। और अगर आप मैगनीशियम के 24 के विचों 12 माइनस करते हैं तो अपना आंसर आएगा जी 12, यानी कि 12 की हैं तो दोनों के ही 12 न्यूट्रॉन हैं। आई होप दैट इज़ क्लीयर। देखो जी आइसोटोन का मतलब होंदा है जी जिन्हां विच न्यूट्रॉनां की संख्या सेम होवे। तो फास्फोरस और सिलिकॉन के 16-16 न्यूट्रॉन होंदे हैं। उस तो बाद सोडियम और मैगनीशियम के 12-12 न्यूट्रॉन होंदे हैं। तो एक दूसरे के की हैं तो एक दूसरे के आइसोटोन हैं। देखो स्टूडेंट मैं वार वार बोल रहा हाँ न्यूट्रॉनां की संख्या निकालने लिए किसी भी एटम के विचों एटॉमिक वेट के विचों एटॉमिक नंबर को माइनस करना होंदा है, यानी कि उपर वाली वैल्यू के विचों नीचे वाली वैल्यू माइनस करांगे। हाँ जी, हुण इस तो बाद स्टूडेंट दो चीज़ां आपां देखण जा रहे हैं, एक है जी कैनाइन और एक है जी एनाइन। कई बार एग्जाम के विच पूछा जाता है कैनाइन अते एनाइन की हुंदे हन। देखो जी सब तो पहली चीज़ जो तुसी याद रखनी है, कैनाइन दे विच तुसी याद रखोगे जी कैनाइन के उपर किहड़ा चार्ज हुंदा है, पॉजिटिव चार्ज हुंदा है, और एनाइन के उपर किहड़ा चार्ज हुंदा है, नैगेटिव चार्ज हुंदा है। ये दो पॉइंट तो तुसी हमेशा याद रखने हैं। ठीक है जी, कैनाइन के उपर पॉजिटिव चार्ज और एनाइन के उपर नैगेटिव चार्ज, ये चीज़ समझ आ गई। हुण देखो जी नैक्सट कैनाइन दे विच अगर आप गल करते हाँ तो ये करता है रिलीज़ इलैक्ट्रॉन, यानी कि जदों कोई एटम इलैक्ट्रॉन नूं छड्डदा है वो की होएगा जी कैनाइन होएगा। देखो जी सिंपल जी गल है, जदों भी कोई एटम इलैक्ट्रॉन नूं छड्डदा है तो उसके उपर किहड़ा चार्ज होएगा, पॉजिटिव चार्ज होएगा। और अगर आप एनाइन की गल करते हाँ जदों कोई गेन इलैक्ट्रॉन नूं गेन करता है, यानी कि जदों कोई इलैक्ट्रॉन लैंदा है, अगर आप कोई चीज़ लै रहे हैं तो उसके उपर की होएगा, नैगेटिव चार्ज होएगा। आई थिंक ये दो चीज़ां तुहानूं क्लीयर हो चुकियां हैं। हुण आपां इसनूं एग्जाम्पल के थ्रू समझण की कोशिश करते हैं। हाँ जी, सब तो पहली चीज़ देखो जी, सब तो पहले है जी तुहाडे सामने Na यानी कि सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होंदा है 11। ये आप फॉर्मूले लिखना भी आप सीखांगे, पहले एक बार तुसी एग्जाम्पल देखो। देखो जी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होंदा है 11 होंदा है। ठीक है जी, हाँ जी, हुण आप इस 11 नूं किस तरह लिखते हैं 2, 8 और 1, यानी कि पहले ऑर्बिट दे विच 2 न्यूट्रॉन होणगे, उस तो बाद दूसरे दे विच 8 होणगे और तीसरे दे विच 1 होएगा। ये चीज़ तुहानूं समझ आ चुकी है। हुण देखो स्टूडेंट ये की करेगा अपने लास्ट ऑर्बिट नूं पूरा करने लई या तो 7 इलैक्ट्रॉन ले लेगा या फिर 1 इलैक्ट्रॉन नूं छड्ड देगा। तो इसलिए ईजी की है जी 7 इलैक्ट्रॉन लैन की बजाय अपना 8 पूरा करने की बजाय ये 1 इलैक्ट्रॉन नूं छड्ड देगा। अगर ये 1 इलैक्ट्रॉन नूं छड्डेगा तो इसके उपर की होएगा जी Na+ लिखिया आ जाएगा, यानी कि कैनाइन के उपर किहड़ा चार्ज होंदा है, आपां देखिया जी पॉजिटिव। हुण देखो स्टूडेंट इस तो बाद नैक्सट एग्जाम्पल है जी तुहाडे सामने। हाँ जी, नैक्सट एग्जाम्पल है जी Mg यानी कि मैगनीशियम। तो मैगनीशियम के जो आप बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर कितना होंदा है 12। इसनूं आप किस तरह लिख सकते हैं, इसनूं आप लिख सकते हैं 2, 8 और 2, यानी कि पहले ऑर्बिट दे विच 2, दूसरे दे विच 8 और तीसरे दे विच 2। हुण ये भी की करेगा जी या तो 8 पूरा करने लई, देखो जी 8 इलैक्ट्रॉन अपने तीसरे ऑर्बिट दे विच पूरा करने लई की करेगा जी 6 इलैक्ट्रॉन नूं लएगा या फिर 2 इलैक्ट्रॉन नूं छड्ड देगा। तो इसलिए ईजी की है जी 6 इलैक्ट्रॉन लैन की बजाय ये अपने 2 इलैक्ट्रॉन नूं छड्ड देगा। तो मैगनीशियम के उपर की बनिया आ जाएगा जी मैगनीशियम++, यानी कि इसने 2 इलैक्ट्रॉन की हाँ जी छड्ड दिते हैं। हाँ जी, आई थिंक तुहानूं ये चीज़ समझ आ रही है। तो इसके उपर किहड़ा चार्ज होएगा जी, आपां देखिया जी पॉजिटिव चार्ज। बट एनाइन के केस विच आपां की देखिया, एनाइन के केस विच देखिया जदों कोई इलैक्ट्रॉन लैंदा है। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे सामने एक एग्जाम्पल है जी, हाँ जी एग्जाम्पल है जी क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होंदा है तो 17 होंदा है। इस 17 नूं आपां किस तरह लिख सकते हैं, इस 17 नूं आपां लिख सकते हैं 2, 8 और 7। हुण देखो स्टूडेंट आई होप ये चीज़ तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। हुण इसने की करना है अपने लास्ट ऑर्बिट नूं पूरा करना है, यानी कि इस दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन लैके आने हैं 8, इस दे कोल पहला किन्ने हैं 7। तो हुण देखो जी ये की करेगा या तो 1 इलैक्ट्रॉन ले लेगा कि अपने 8 पूरे हो जाए या फिर 7 इलैक्ट्रॉन किसी और नूं दे देगा। तो इसलिए ईजी की है जी 1 इलैक्ट्रॉन लैके अपना लास्ट ऑर्बिट की है कंप्लीट करना। तो ये जदों 1 इलैक्ट्रॉन लेगा इस दे उपर किस तरह का चार्ज हो जाएगा, नैगेटिव, यानी कि क्लोरीन जो नैगेटिव हो जाएगा। आई होप दैट इज़ क्लीयर।
ਹੁਣ ਆਪਣਾ लास्ट स्लाइड वाल आप मूव करते हैं। हाँ जी, लास्ट जो अपनी स्लाइड है इस दे विच आपां दो चीज़ां कवर अप करांगे, कोर इलैक्ट्रॉन और सैकेंड है जी वैलेंस इलैक्ट्रॉन। कई बार एग्जाम दे विच पूछा जाता है कोर इलैक्ट्रॉन की हुंदे हन, कोर नूं आपां कोर ही बोलांगे और वैलेंस इलैक्ट्रॉन या संयोजी इलैक्ट्रॉन की हुंदे हन। देखो स्टूडेंट, इन्हां दे विच तुसीं सिर्फ और सिर्फ एक दो पॉइंट ही याद रखने हन। सब तो पहलां आपां देखदे हां जी कोर इलैक्ट्रॉन दे विच एक एग्जाम्पल नूं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर आप पहला भी डिस्कस कर चुके हाँ, कितना हुंदा है जी, तो 11 हुंदा है। ये चीज़ तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। लास्ट स्लाइड दे विच भी आपां देखा सोडियम नूं आपां किस तरह लिखते हाँ, सोडियम नूं आपां लिखते हाँ 2 8 और 1 दे विच। हाँ जी, 2 8 और 1 एक ही है जी, ये एक इन्हां दा ऑर्बिट हुंदा है, पहले दे विच 2 फिर 8 फिर 8। ये आपां देखांगे अपने नैक्सट लैक्चर दे विच। हाँ जी, हुण अपने लिए इंपोर्टेंट की है जी, अपने लिए इंपोर्टेंट है इस दे विच जो 2 8 यानी कि जो ऑर्बिट पूरे हैं। हाँ जी, जो मैं सर्कल दे विच ड्रॉ करे हुए हैं इन्हां नूं की बोलिया जाता है, इन्हां नूं बोलिया जाता है कोर इलैक्ट्रॉन। और जो लास्ट दे विच बचिया है इकल्ला, इस नूं बोलिया जाता है वैलेंस इलैक्ट्रॉन। आई थिंक तुहानूं ये चीज़ समझ आ चुकी होएगी। देखो जी, जो ऑर्बिट कंप्लीट हैं यानी कि 2 और 8 वाला कंप्लीट है, इसनूं बोलिया जाएगा कोर इलैक्ट्रॉन। और जो एक पेंडिंग है यानी कि एक है, हाँ जी, एक ही है जी वैलेंस इलैक्ट्रॉन। नीचे मैं एक लाइन भी लिखी है, इनर ऑर्बिट विच प्रजेंट इलैक्ट्रॉन की संख्या नूं की बोलिया जाता है, इसनूं बोलिया जाता है कोर इलैक्ट्रॉन। आई होप दैट इज़ क्लीयर। हुण आपां गल करते हैं जी वैलेंस इलैक्ट्रॉन की। हाँ जी, जदों आपां वैलेंस इलैक्ट्रॉन की गल करते हैं तो इस दे विच सब तो पहली चीज़ किसी भी रिएक्शन या अभिक्रिया दे विच वैलेंस इलैक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ जी, हुण देखो स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन बनता है जदों भी कोई रिएक्शन होंदी है उस रिएक्शन दे विच पार्टिसिपेट कौन करता है, कोर इलैक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलैक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस इलैक्ट्रॉन होंदे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ जी, उस तो बाद सैकेंड चीज़ की है जी, सैकेंड है जी आउटर ऑर्बिट विच प्रेजेंट इलैक्ट्रॉनों की संख्या। आउटर ऑर्बिट देखते हैं इनर अते आउटर की हुंदा है। हाँ जी, हुण आपां देखते हैं जी इनर अते आउटर। देखो स्टूडेंट, तुहाडे सामने एक एग्जाम्पल है। हाँ जी, एग्जाम्पल है जी एलूमीनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। इसनूं आपां किस तरह लिख सकते हैं, तो इसनूं आपां लिख सकते हैं 2 8 और 3 की फॉर्म दे विच। 2 8 और 3 यानी कि जो 2 और 8 है ये अपना की है जी ऑर्बिट कंप्लीट कर चुके हैं, इन्हों आपां बोलांगे जी कोर इलैक्ट्रॉन। और जो लास्ट दे विच 3 है इसनूं अपना 8 पूरा करने लई या तो 5 इलैक्ट्रॉन लैने पैणगे या ये 3 इलैक्ट्रॉन नूं छड्ड देगा। हाँ जी, तो ये जो 3 वाला कॉलम है इसनूं ही बोलिया जाता है वैलेंस इलैक्ट्रॉन। और अगर क्वेश्चन आए किसी भी रिएक्शन दे विच पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो ये 3 वाला, क्योंकि देखो जी पहले वाले तो जो ऑर्बिट हैं ये कंप्लीट हैं, 3 वाला की करेगा या तो 5 इलैक्ट्रॉन नूं गेन कर लेगा या फिर 3 इलैक्ट्रॉन नूं रिलीज़ कर देगा, छड्ड देगा। आई होप ये चीज़ तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। अज दे लैक्चर दे विच इन्ना ही स्टूडेंट। अगर तुहानूं ये वीडियो पसंद आई है तो इसनूं लाइक करो, ज़्यादा तो ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक नूं शेयर करो। तुसी अपने फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट अपने स्टेटस लगा के साडा हौसला वधा सकते हो। देखो स्टूडेंट, जिन्ना ज़्यादा तुसी सानूं लाइक करोगे, साडी वीडियो नूं तुसी शेयर करोगे, उन्ना ही ज़्यादा असीं तुहाडे लई मटीरियल प्रोवाइड करांगे। और सारा ही मटीरियल फ्री ऑफ कॉस्ट तुहानूं साडे चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है।